Namaste, everyone. This is Harsha Ramaiya, and today is Friday. And every Friday, we invite one expert to talk about something that is beneficial to the parents, to the children. So today, I have invited Dr. Pooja Gogawala. बहुत बड़ा नाम है जब हम आंखों की बात करते हैं भावनगर में. आई माई सेल्फ एम हर पेशेंट एंड थैंक यू पूजा मैम. आपने मेरी आंखों की जो मतलब सही तरीके से आपने मेरी आंखों की जो देखभाल की है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. So today, primarily, we are going to discuss about screen time and the damage that is causing to the children, to their eyes, because parents are worried too much about kids' eye care. So we are going to have some eye care tips from Dr. Pooja Gogawala. So let me invite her on the screen so that we can discuss further. Namaste, Pooja ma'am. Namaste. Namaste. Thank you so much for inviting me to this session. Pleasure, ma'am. तो सबसे पहले पूजा मैम से बातचीत शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हर ऑन द स्क्रीन. सो शी इज एन MS ऑप्थोमोलॉजी, MP Shah Medical College, Jamnagar. She is a gold medalist. Congratulations, ma'am. DNB ophthalmology from Arvind Eye Thank Institute, you. Madurai. Fellowship in Medical Retina from Retina Hospital, Rajkot, under Mukesh Porwal. Practicing eye surgeon in Bhavnagar at Radhesham Eye Hospital since 19 years. Performed more than 14,000 cataract surgeries till date. Oh my God, मतलब मैम कितना बिजी रहते हो आप. सो पहले तो थैंक यू ये कहना चाहूंगी आपने टाइम निकाला और इस शो पर आप आए. So thank you so much, ma'am. No, it's my pleasure. सबसे पहले मैम ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आजकल बच्चे स्क्रीन्स पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं, अदरवाइज भी बच्चों की आंखों से बहुत प्रॉब्लम्स होती है. तो पेरेंट्स क्या चीज का ध्यान रखें जब हम स्पेसिफिकली आई केयर की बातें करते हैं? You're right. आजकल मोस्टली स्टडीज है कंप्यूटर पर बच्चों को करना पड़ता है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. Otherwise also now use of screen is increasing day by day. It's actually there is no real damage or danger of using screen if you are using it properly. If you are using good eye hygiene. By eye hygiene I mean कि एक तो स्क्रीन है आप प्रॉपर डिस्टेंस पे रखिए. इट शुड बी नॉट वेरी क्लोज टू अवर आईज. Like if you are working on a laptop or a computer, you should keep it at least a hand distance, an arm's length distance away from you, almost 30 centimeter away from you. So it will decrease the tiredness, it will decrease the strain. Second, the illumination, the light in the room should be fairly good. Children should not study in a dim light room or a dull light room or a lamp is not advised. Proper illumination will always give good efficiency and less of tiredness. Another point which is important is children should be trained that they should not forget to blink their eyes. What happens when we use the screen? We just keep on looking at it, we keep on staring at it. तो हम बीच बीच में आंख को खोल बंद करना भूल जाते हैं. तो I would advise कि they should blink their eyes oftenly to make them wet so that they don't suffer from dryness of eyes. These things are more important. And extra use of screen should be avoided. When they have to study on the screen, it's okay. फिर गेम्स के लिए I would say कि that is not advised because that is going to tire their mind as well as their eyes. So they should use full efficiency for their studies. For entertainment, they should be more engaged in outdoor games, not on a screen, so that the damage to the eye or tiredness to the eye is less. These are mostly and another one important point is that सिटिंग पोस्चर के अंदर बच्चे पढ़ें तो वो सबसे अच्छा है. टेबल चेयर के ऊपर पढ़ें वो बहुत अच्छा है. इससे हमेशा थकावट कम लगती है. बच्चों को लेटे लेटे पढ़ने की आदत रहती है. उसमें इसका बहुत बेसिक जो है कि पूरी बॉडी अगर आराम कर रही है, आप लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, पूरी बॉडी आराम कर रही है
तो आंख भी आराम करना चाहती है, पर आप आंख से काम ले रहे हैं, so unknowingly you are causing strain to your eyes, and then children complain of headache, eye strains, eye burning. तो अगर पोस्चर ठीक हो पढ़ने का, तो that will decrease all these complaints of headaches. Mostly headaches are because of improper posture of children during studying, especially during screen use. And same goes for television use also. बच्चों को लेटे लेटे टीवी देखने की आदत होती है, अंधेरा करके टीवी देखने की आदत होती है, तो इन सब चीजों से आंख को थकावट ज्यादा लगती है। आप टीवी देखें, जरूर देखें, दूरी से देखें, उसके लिए मिनिमम आप 10 फुट, 8 से 10 फुट की दूर बैठ के देखें टीवी, और लाइट रूम की अच्छी रखें, डिम लाइट में टीवी ना देखें, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ अडेप्टेशन कि हमारी आंख है जो वो लाइट को कैसे अडेप्ट हुई हुई है। हम अंधेरे रूम में बैठे हैं, तो हमारी आंख तो अंधेरे से अडेप्ट हुई हुई है, उसमें जो लाइट टीवी की चेंज होंगी, ब्राइट होगी, कम होगी, तो हर बार हमारी आंख के मसल्स को उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, तो इट विल लीड टू अननेसेसरी टायर्डनेस। इफ यू आर वाचिंग टीवी इन प्रॉपर लाइटेड रूम, इट विल नॉट लीड टू टायर्डनेस। these are the बहुत things अच्छी which parents should have. वेरी नाइस टिप पूजा मैम। मैं सच में बोलूंगी कि आपने जो आई हाइजीन वर्ड यूज किया, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि मोबाइल में खेलते हैं तो इतना डिस्टेंस रख के दे आर प्लेइंग। तो ये भी बहुत अच्छी टिप आपके साइड से थी कि थोड़ा डिस्टेंस रखें और रूम को लाइटेड रखें, बिकॉज आईज को ब्लिंक करने की भी बहुत अच्छी टिप आपने दी। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे जब टीवी देखते हैं तो पूरा उसके अंदर इतना एंग्रॉस हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि आंखों को झपकना भी चाहिए। तो आई थिंक कि पेरेंट्स को इस चीज का अगर जो ध्यान रखे, थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को या तो उस रूम, अगर टीवी देख रहे हैं वहां से खड़ा करके कहीं और ले जाए और बाद में बिठाए, तो आई थिंक कि चेंज ऑफ प्लेस ऑल्सो विल हेल्प देम। तो बहुत अच्छी टिप आपने। पूजा मैम, दूसरा जो पोस्चर का आपने बताया कि सोते सोते टीवी देखने से, उस पे आप थोड़ा सा एलैबोरेट मैं चाहूंगी कि आप करें, बिकॉज ज्यादातर बच्चे मैंने देखा है कि सोफे पर लेटे हुए या बेड पे लेटे हुए टीवी देख रहे हैं, तो वो कैसे अपने मसल्स को डिस्टर्ब करता है, थोड़ा फिर से और थोड़ा डिटेल में आप एक्सप्लेन करेंगे मैम? यस, इसका बेसिक ये है कि जब हम लेटे हैं, हमारे सारे बॉडी के सब मसल्स आराम में हैं, तो नेचुरली आंख के मसल्स भी बॉडी का इम्पोर्टेंट, आंख के जो पार्ट है वो आंख बॉडी का ही पार्ट है, तो इट ऑल्सो वांट्स टू गो टू रेस्ट दैट टाइम। तो वो भी आराम करने की जगह हम उस वक्त टीवी देख रहे हैं, हम उनसे अननोइंगली काम ले रहे हैं, so definitely our eyes get extra strain at that time because the whole body is resting and body is in rest position, तो उससे strain ज्यादा पड़ता है because they have to do extra work, so it is not very favorable for the eye muscles. They give you work, आप देखेंगे आंख तो strain करके देखेगी, but then they typical get the headache on their साइड ऑफ देयर, पेरेंट्स बहुत बार कंप्लेन करते हैं कि इसको यहाँ नमड़ों में दुखता है, यहाँ पे साइड में दुखता है, so that is because our eye muscles are attached here and they strain and then we get a headache of that type. तो थोड़ा सा हाइजीन बच्चे ठीक रखें तो उनको ये हेडेक की कंप्लेंट नहीं रहेगी। मैम, एक बेसिक क्वेश्चन है जो ज्यादातर पेरेंट्स पूछते रहते हैं कि स्पेसिफिकली एट वन टाइम कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, बिकॉज कोई कहते हैं 20 मिनट्स, कोई कहते हैं 50 मिनट्स, तो बेसिक एक टाइम पे कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए बच्चों का? हाँ, अब तो बच्चों को मोस्टली स्टडीज लेक्चर्स बच्चों के 1-1, 1.5 घंटा चलते हैं, स्कूल से लेक्चर आते हैं, कॉलेज से आते हैं, तो ऐसा नहीं है 20 मिनट के 50 मिनट, चिल्ड्रन कैन स्टडी फॉर 1.5 2 hours, ऐसे कोई, इफ दे आर इन प्रॉपर पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, दे हैव प्रॉपर लाइट, they are used to blink their eyes normally and they are keeping a proper distance of screen of 30 centimeter or arm's length, then it's okay, they can continue their studies, there is no harm, but when they are coming to game, no, we definitely say कि नहीं, गेम उनको 15-20 मिनट से ज्यादा मत दो, क्योंकि उसमें लाइटिंग चेंज होती हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो उनको आईज को थकाएगी, उनकी स्लीप डिस्टर्ब करेगी रात की, उनका पूरा रिदम डिस्टर्ब करेगी, तो उसके लिए हम अवॉइड करते हैं कि उसमें आप बहुत ज्यादा गेम टाइम मत दीजिए। स्टडी टाइम में ओके, इट इज गोइंग इन अ नॉर्मल रिदम, let them study on, there is no harm, they can study for 1.5 or 2 hours, no problem, even more if they want, they can take a small break of 5 minutes.
राइट। Yes. सो बहुत अच्छी टिप आपने दी जब आपने मेंशन किया They कि can take a small break of 5 minutes in between. Can they can do that. राइट। सो जब आप गेम्स का बता रहे थे, आपने बहुत ब्यूटीफुली ये एक्सप्लेन किया कि गेम्स में लाइटिंग इफेक्ट्स चेंज होती है और उन अंदर मूवमेंट भी होती है, तो रात को नींद भी बच्चों की डिस्टर्ब होती है। तो मैं चाहती हूँ कि उस पे आप थोड़ी ज्यादा रोशनी दें, बिकॉज मैंने ये देखा है कि छोटे बच्चे मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाते, रात को सोने से पहले भी उनको मोबाइल चाहिए गेम्स खेलने के लिए। तो ये किस हद तक, पढ़ाई एक अलग पैटर्न है, जैसे आपने बताया कि वो एक रिदम में जा रहा है तो इतना आइस को स्ट्रेन नहीं करता, पर गेम्स खेलना आपने बताया कि स्ट्रेस करता है, तो बच्चों की स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो मैं चाहती हूँ कि उस पर आप थोड़ा इलेबोरेट करें तो पेरेंट्स समझ सके कि क्यों हमें उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, क्योंकि बच्चों की पढ़ने में जो एफिशिएंसी है ना, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी तो ही मिलेगी पढ़ने में, गेम्स में, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में, इफ दे आर गेटिंग गुड साउंड स्लीप, प्रॉपर आवर्स ऑफ स्लीप। अब मोबाइल यूज ऐसी चीज है ना गेम की, वो एक बार बच्चे स्टार्ट करे 10 मिनट तो इट विल बी नेवर 10 मिनट, इट गेट्स प्रोलॉन्ग्ड टू हाफ एन आवर, 45 मिनट, तो वो बच्चे का नींद का ही टाइम ले जाती है। So children compromise for their sleep and their next day वही उनकी थकावट उनकी स्टडीज में आती है, क्योंकि उनके मसल्स को पूरा आराम तो मिला नहीं है जो मिलना चाहिए था। दे थिंक कि हम आराम कर रहे हैं, हम तो गेम खेल रहे हैं, बट आंख को आराम नहीं मिल रहा है, आंख तो काम कर रही है। तो इसलिए मैं एडवाइस करती हूँ कि इस गेम की जगह आप आराम मिले और फ्रेशनेस मिले। राइट, वंडरफुल पूजा मैम। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरी तरफ से कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को बहुत कम उम्र से ही चश्मे आने लग गए हैं। अभी आप देखते होंगे कि छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चों को भी चश्मे आते हैं। तो उससे पहले अगर जो हम ध्यान रखें तो किन चीजों का ध्यान रखें कि बहुत अर्ली एज में बच्चों को चश्मा न लग जाए? हाँ, मेनली है ना, ऐसे पेरेंट्स है डेफिनेटली दे आर वरीड जब बच्चों को छोटी एज से नंबर आना शुरू हो जाए। उसपे सम पार्ट ऑफ इट इज हेरिडिटरी, हाई नंबर है, 6-7 माइनस नंबर है कि हाई प्लस नंबर है, तो बच्चों की आंख का आकार पेरेंट्स की आंख के जैसा ही होता है। तो इट इज डेफिनेटली गोइंग, पेरेंट्स को नंबर है या ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत नंबर है या एल्डर चाइल्ड को नंबर है, तो यंगर चाइल्ड को जरूर चेकअप के लिए ले जाएं कि इसके बड़े भाई के बहन को नंबर है तो इसको भी दिखाइए जरूर, क्योंकि इट इज नेचुरल की हेरिडिटी बहुत उसके अंदर स्ट्रांगली उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, हमेशा ऐसा नहीं है, पेरेंट्स कहते हैं कि भाई मुझे भी नंबर नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स को भी नहीं है, इसको कहाँ से आ गया? तो सम थिंग्स डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल, उसकी आंख का ग्रोथ कैसा है, उसकी आंख का साइज कैसा है। तो समटाइम्स फैमिली में ना हो तो भी बच्चे को नंबर हो सकता है, और पेरेंट्स को खास आइडिया कहाँ से आएगा? उनको लगता है कि मेरे बच्चे को तो नंबर हो ही नहीं सकता है, हम में से किसी को नहीं है। तो बच्चे का हमेशा अब पढ़ने का स्टाइल है तब ध्यान दे, टीवी देखता है तब ध्यान दे। अगर बच्चा हर बार स्क्रीन के पास में जाके ही खड़ा रहता है तो इट शुड गिव यू एन आइडिया कि उसको चश्मे की जरूरत है, इसलिए वो नजदीक जा रहा है, उसको नजदीक से ही दिखता है, उसको दूर बिठाओ तो उसको दिखता ही नहीं है। तो इसलिए वो नजदीक जा रहा है, वो पेरेंट्स को क्लिक हो जाना चाहिए। या वो बहुत आंखें छोटी छोटी करके बच्चे कभी देखते हैं, आंखें टेढ़े करके देखते हैं, एकदम आंख स्क्वीज करके देखते हैं, तो दिस शुड गिव आइडिया टू द पेरेंट्स कि इसकी आंख में ये फोकस करने की कोशिश कर रहा है। जब बच्चों को माइनस नंबर होता है तो वो फोकस करने के लिए एकदम अपनी आंख को स्क्वीज कर देते हैं, तो देन दे कैन सी बेटर। तो एक्चुअली दे आर कॉम्पनसेटिंग टू फॉर देयर नंबर, एंड व्हेन दे कंटिन्यूअसली कॉम्पनसेट इन क्लास ऑल्सो, पीछे से दिखेगा नहीं, वो पीछे से स्क्वीज करके देखेंगे या वो क्लास में आगे जाके देखेंगे, तो ऑल दिस विल कॉज टायर्डनेस टू देम। पूरे दिन वो आंख को स्क्वीज करते हैं, शाम को उनको हेडेक होने लगता है। तो पेरेंट्स को इन चीजों से आइडिया आ जाना चाहिए कि बच्चे को कुछ आंख में प्रॉब्लम है, ही इज नॉट सीइंग प्रॉपर। पेरेंट्स को कई बार चिल्ड्रन कंप्लेन भी करते हैं कि मुझे नहीं दिखता है, बट दे थिंक कि नहीं, इसको चश्मे का शौक है, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसको चश्मा नहीं आ सकता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वेन एवर योर चाइल्ड कंप्लेन कि मुझे क्लास में दिख नहीं रहा है, मुझे आगे जाके देखना पड़ रहा है,
या मुझे टीवी नजदीक से दिखता है, दूर से नहीं दिखता है। एंड वन लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे बहुत नजदीक बुक रखे तो बुक के अंदर ही घुस जाता है बिल्कुल, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ हाई नंबर। राइट, जरूर चेक करानी चाहिए। वंडरफुल, बिकॉज ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा पेरेंट्स का भी स्ट्रांग होना चाहिए, बच्चों की हरकतें जो आईज की है उस पर उनका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मैं पूछना चाहती हूँ मैम कि पहले ऐसा था कि जीवन नेत्र प्रभा ऐसे कोई ड्रॉप्स आते थे आईज में डालने के लिए जो हमारे पेरेंट्स डाला करते थे, तो ऐसे कोई रेगुलर नॉर्मल ड्रॉप्स हैं कि जो आईज में डालना चाहिए बच्चों को या अडल्ट्स को टू टेक केयर ऑफ देयर आईज? या दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि अब क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, हम फोन पे आने लग गया है, तो देयर आर वेरी गुड है, तो they are available with very many good companies. Your ophthalmologist can give you a prescription of any good lubricating eye drop, उससे आंख है ड्राई नहीं होती है, तो यू कैन यूज इट 2 to 3 times a day, इवन इफ बीच में आपको आंख जल रही है, टायर्ड हो गए हैं, तो आप डाल के 5 मिनट रिलैक्स करिए, तो lubricating eye drops are usually राइट, तो ये भी हम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जब आप आईज का चेकअप कराने जाएं बच्चों का, तो प्लीज आप प्रिस्क्राइब करवा लीजिए डॉक्टर से, ताकि ये भी एक ड्राइनेस जो है बच्चों की कम हो सके। सो पूजा मैम, थैंक यू सो मच। पूजा मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव पॉइंट्स हमारे पेरेंट्स के साथ डिस्कस किए हैं। आई एम श्योर पेरेंट्स को आज बहुत नॉलेज मिला होगा कि क्या चीजें वो ध्यान रख सकते हैं, कैसे बच्चों का पोस्चर मैनेज कर सकते हैं, बच्चों की आई हाइजीन जो है वो मैनेज कर सकते हैं। पूजा मैम, थैंक यू सो मच इस शो पर आने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। would like to, yes, yeah, but I would like to add for parents कि बच्चों को खास जरूर अच्छा डाइट दें, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा दें, सीजन में मैंगो खूब खिलाएं बच्चों को, मैंगो से विटामिन ज्यादा अच्छा है, तो आप सीजन में पूरे साल के लिए उसकी बॉडी में विटामिन ए स्टोर हो जाएगा, आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बहुत जरूरी है। और हर बच्चे को 3 साल से 4 साल की बीच के एज में एक बार आंख के चेकअप के लिए जरूर ले जाएं, कई बार छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार छोटी मोटी चीज नंबर आपको पता ही नहीं चलता कि एक आंख उसकी बहुत वीक है, बच्चा आपको बताएगा नहीं कि मुझे एक आंख से नहीं दिख रहा है, तो ये चीजें कई बार बहुत लेट पता चलती हैं, उनको जॉब मिलने की बात आती है तब पता चलता है कि एक आंख कमजोर है, तो वो बच्चे को आप 3 से 4 साल के बीच में जरूर चेक कराएं। आपको बच्चे की आंख सीधी ना लगे, टेढ़ी लगे, स्क्विंट लगे, आपके बच्चे उसके देखने का स्टाइल अलग लगे, तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें, स्पेशली स्क्विंट आई को, टेढ़ी आंख को बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि बच्चे की आंख को आप इंजरी से जरूर बचाएं, पॉइंटेड पेंसिल, पेन, जो छोटे मोटे खिलौने ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर पॉइंटेड और चीजें होती हैं, जैसे ये जन्माष्टमी आती है तब वो तलवारें मिलती हैं, बच्चे उनके बहुत शौकीन होते हैं, तो तब पेरेंट्स बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये चीजें हैं ना आंख को बहुत नुकसान करती है, और आंख तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जिसको चोट नहीं लगनी चाहिए, और इतना सॉफ्ट ऑर्गन है कि ये चोट सहन नहीं करता है। तो वो मेरा बहुत एडवाइस है कि क्रिकेट बॉल से बच्चों का बहुत ध्यान रखे, बिकॉज उसका स्पीड है, कई बार वो पूरी रिकवर नहीं हो पाती है, तो वो मेरी बच्चों को एडवाइस है कि पेरेंट्स को कि बच्चों को आंख की इंजरी से वो
एब्सोल्युटली पूजा मैम, बहुत अच्छी टिप्स आपने दी पेरेंट्स को। आई एम श्योर कि हम सब इस टिप्स को याद रखेंगे। और आईज आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मैं जानती हूँ बिकॉज मेरी एक आई थोड़ी सी कम काम कर रही है, तो अब मैं जानती हूँ कि कितना इंपॉर्टेंस है आईज का ध्यान रखने का। तो पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जैसे पूजा मैम ने टिप्स दी हैं उन टिप्स को फॉलो करें। और 3 से 4 साल की अगर आपकी बच्चों की एज है तो प्लीज एक बार आई चेकअप करवा लीजिए। और अगर बच्चे थोड़े बड़े हो गए और फिर भी आपने नहीं चेकअप करवाया, आई एम श्योर कि एक बार चेकअप करवा लेना इज बेटर, सो दैट वी नो कि कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो थैंक यू पूजा मैम, ऑन बिहाफ ऑफ स्मॉल वंडर्स आई रियली थैंक कि आपने इतना वैल्यूएबल टाइम और इतनी वैल्यूएबल टिप्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू मैम। Thank you so much, Mrs. Harsha, for inviting me to your show. Thank you. It was my pleasure. थैंक यू मैम, थैंक यू।